الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواہ البخاری او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام نحوہ و مثلہ. میرے محترم دوست اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ایمان کی 3 بنیادی عقائد کو، جن میں سے پہلا بنیادی عقیدہ ہے توحید پر ایمان لے آنا، کہ توحید پر اگر ایمان نہیں ہے، چاہے تم 1,24,000 انبیاء علیہم السلام پر ایمان کیوں نہ رکھو، تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے. اگر تم نے اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو شریک کیا یا اللہ کی وحدانیت کا ہی انکار کر دیا تو سمجھ لو تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے. دوسرا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ رسالت کا ہے، کہ اللہ کی وحدانیت پر تمہیں اقرار ہے، اللہ کے ایک ہونے کو تم مانتے ہو، اوروں کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے. لیکن اگر وقت کے نبی علیہ السلام پر تمہارا ایمان نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں اور اللہ کی رسالت اور اس کے احکام اور قوانین کو لے کر آئے ہیں، اگر اس بات کا اقرار نہیں کرتے تو تمہاری توحید کسی کام کی نہیں ہے. جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے جب مدینہ المنورہ اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، اس میں کل 4 قبیلے رہائش پذیر تھے، جن میں سے 2 قبیلے یہود کے تھے اور 2 قبیلے کفار اور مشرکین کے تھے. یہود کے جو 2 قبیلے تھے ان کا نام بنو قریظہ اور بنو نذیر تھا، اور کفار و مشرکین کا جو قبیلہ تھا وہاں پر آباد تھا، ان کا نام اوس اور خزرج تھا. مدینہ المنورہ میں نبی علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے ان کے آپس میں جنگ ہوا کرتی تھی. جب بھی اہل کتاب کا کفاروں کے ساتھ مقابلہ ہوتا تھا تو اہل کتاب جو یہود تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ابھی تو ہماری جنگ کبھی شکست اور فتح میں بدلتی رہتی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جس کا ذکر ہماری کتاب میں موجود ہے کہ آخر النبی الزماں آئیں گے اور پورے عالم میں اپنی رسالت کو پھیلائیں گے. اس وقت جہاد ہوگا اور وہ نبی جس کے ساتھ ہوگا فتح و نصرت ان کی کامیابی ہوگی. لہذا ابھی تو ہم صبر کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن جب وقت کا نبی آخر الزماں ہمارے درمیان میں جلوہ افروز ہوگا اس وقت تمہاری شکست یقینی ہے اور ہم تمہارے خلاف جنگ اس نبی کے ساتھ رہ کر لڑیں گے. اور اس وقت قرآن نے خود فرمایا ہے کہ اہل کتاب دوسرے قوموں کے مقابلے میں فضیلت رکھتی تھی، اور اللہ رب العزت نے دوسرے قوموں کے مقابلے میں اہل کتاب کو فضیلت عطا کی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وحدانیت کا اقرار کرتے تھے اور گزرے ہوئے انبیاء علیہ السلام کو مانتے تھے، انبیاء علیہ السلام کی رسالت کو مانتے تھے. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں دنیا والوں پر فضیلت عطا کی تھی. وہ نسب و حسب اور نام و نشان کے اعتبار سے ان کی فضیلت نہیں تھی، بلکہ اہل کتاب ہونے کی حیثیت سے اللہ رب العزت نے انہیں فضیلت عطا فرمائی تھی. بہرحال وقت گزرتا گیا،
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکی زندگی میں مبعوث ہوئے اور 13 سال تک صحابہ کرام کے ساتھ اپنی ایمانی محنت میں لگے رہے، لیکن جب وہاں سے نا امید ہو گئے اور کفاروں کی طرف سے صحابہ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مختلف طریقے سے تکلیفیں پہنچائی گئی، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دے دیا، اور کچھ ہی فاصلے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ہجرت کا حکم دے دیا۔ ہجرت کے موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی، کس طرح مدینۃ المنورہ کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے رخ کیا، تاریخ کی کتابوں میں مختلف طریقے سے وہ واقعات بھرے پڑے ہیں، اور آپ لوگوں کے ذہن میں بھی کئی مختلف طور پر مختلف اوقات میں وہ واقعات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اصل مقصد کانوں کی مزہ نہیں ہے، اصل مقصد ہماری زندگی میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع ہے، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی جس طریقے سے گزری ہے اسی طریقے سے اگر ہماری زندگی گزرے گی، اسی طریقے سے اگر ہم اپنے آپ کو دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں پر چلائیں گے، تو یاد رکھنا جو بشارتیں اللہ رب العزت نے دنیاوی و اخروی زندگی میں عطا فرمائی ہے وہ ہمیں حاصل ہوگی۔ بہرحال دنیاوی زندگی میں، مکی زندگی میں جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ گئے، اور وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر جو اہل کتاب شمار ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبعوث ہونے کے بعد ہم ان پر ایمان لے آئیں گے اور تمہارے خلاف جنگ لڑیں گے، جب انہوں نے دیکھا کہ نبی آخر الزماں تو قریش میں سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے ہیں، بنی اسماعیل میں سے نہیں ہے، اصل میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 صاحبزادے تھے، ایک کا نام حضرت اسحاق تھا اور دوسرے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے وہ بنی اسحاق میں سے مبعوث فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو آخری نبی الزماں تھے ان کو اللہ رب العزت نے بنی اسماعیل میں پیدا کیا۔ تو یہود اور نصارہ جب انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل سے ہٹ کر بنی اسماعیل میں اس نبوت چلی گئی ہے تو ان کے اندر حسد پیدا ہو گیا، اور وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف ہو گئے اور کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جب وہ ان پر ایمان نہیں لائے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے انہی اہل کتاب کی زبانی اوس و خجرت جو اس وقت کفار اور مشرکین میں سے شمار ہوتے تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آ کر انصار کے لقب سے موسوم ہوئے، اور انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ وعدہ کیا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جنگ لڑ کر پوری دنیا کو فتح کی۔ لہذا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پیغام کے اعتبار سے دنیا میں عام ہوتے گئے، جس طریقے سے بنو قریظہ اور بنو نذیر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن بن گئے، قیامت تک اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن آتے رہیں گے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف اپنی ناپاک زبانیں استعمال کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ یاد رکھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اللہ کے نبی کی ذات محبوب نہ ہو، سب سے زیادہ پیاری نہ ہو، چاہے وہ اپنی اولاد سے بھی ہو یا والدین یا تمام لوگوں کے مقابلے میں، جب تک کہ اس کی زندگی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر نثار نہ کر دے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبوب اور پیارے ہونے کا دعویٰ تو ہمیں ہے، لیکن ہم صرف گفتار کے غازی بنے ہوئے ہیں، کردار کے غازی نظر نہیں آ رہے۔ میرے دوستو، جس وقت وحی کا نزول ہوا، آخر ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کون سی سنت کو ناپسند کرتے ہیں جس کی وجہ سے آج نبی کی اتباع میں ہم پسے پشت رہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کون سا طریقہ ہمیں پسند نہیں آ رہا ہے؟ جس وقت وحی کا نزول پہلی مرتبہ میں ہوا تھا، حضرت
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उस वक्त मौजूद थी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने वही के नुज़ूल का तज़किरा फरमाया। तो उस वक्त हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया था, वल कल्ला अबशिर वल्लाह ला युखज़िका अबदा इन्नका लतसिलुर रहिम व तहमिलुल कुल व तहमिलुल कल व तस्दुकुल हदीस व तक्सिबुल मादूम व तक़री ज़ुयूफ व तक़री ज़ैफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि नबी जी आप खुश हो जाए, हरगिज़ अल्लाह आपको कभी भी रुस्वा नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि आप तो सिला रहमी करते हैं। इन्नका लतसिलुर रहीम, आप तो सिला रहमी करते हैं, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। एक जगह पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सिल मन क़तअक, उस शख्स के साथ सिला रहमी करो जो तुम्हारे साथ कता का ताल्लुक करता है, जो तुम्हारे साथ कता ताल्लुक करता है। दोस्तों, आज हम अपनी जिंदगी में देख ले कि हम अपने रिश्तेदारों के साथ कितना सलूक करते हैं। दुनियावी एतबार से अगर हमसे ज्यादा करीब कोई रिश्तेदारी के हिसाब से है तो वो माँ बाप है। कि हमारे माँ बाप जिस वक्त हम दुनिया में आए, हमारे माँ बाप ने अपने लिए जीना छोड़ दिया था। जब से तो तू पैदा हुआ उस वक्त से अपने लिए जीना छोड़ दिया था, तेरे लिए जीना उन्होंने शुरू कर दिया था। जब तू बीमार होता था तो वो बीमार हो जाते थे, जब तू तंदुरुस्त होता वो खुश हो जाते, जब तू किसी मुसीबत में मुब्तला होते तो वो खुद मुसीबत में मुब्तला हो जाते थे। रात पर अगर तू न सोता तो वालिदैन भी तेरे लिए न सोते, अगर तू रात पर जागता तेरे वालिदैन तेरे लिए रात पर जागते। याद रखिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शब कद्र जैसे अगर रात मुबारक किसी को मिल जाए, अगर वो अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ मांगता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करते। लेकिन 4 शख्स ऐसे हैं जिनके अल्लाह रब्बुल इज्जत शब कद्र में भी दुआ को कबूल नहीं फरमाते। उनमें से एक शख्स वो है जो वालिदैन के साथ नाफरमानी करता हो, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक न करता हो। और रिश्तेदार तो छोड़ो, जब विरासत का मसला आता है, माँ बाप जब मीरास छोड़ के जाते हैं, बहनों को मीरास देने के लिए हम तैयार नहीं हैं। जब कोई बहन मीरास को लेती है तो हम नाराजगी के आंखों से उसे देखते हैं, और जब दे भी देते हैं, लेकिन वो चूंकि मीरास में उसका हिस्सा था और वो उसके मालिक हो चुकी है, उसके बावजूद अगर वो मीरास में कोई आगे पीछे करती है तो भाई नाराज हो जाते हैं कि मेरी बहन ने मीरास में जो हिस्सा मिला था वो माँ बाप का था, इसलिए उसको बेचने का कोई हक नहीं था, उसको किसी और को देने का कोई हक नहीं था, क्यों दे दिया? उस वक्त बहनों से नाराज हो जाते हैं। अल्लाह के कानून को छोड़कर जब समाज को इख्तियार किया, हम पर फिटकारें आना शुरू हो गई। बहरहाल शब कद्र जैसी रात में भी जब वालिदैन की कोई नाफरमानी करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाते। दूसरा वो शख्स जो शराब पीने वाला हो, तीसरा वो शख्स जो कता ताल्लुक करने वाला हो, जो अपनों मुसलमानों से कता ताल्लुक करने वाला हो। आज तो हम अपने ही के साथ नाफरमानी करते हैं, औरों के साथ कैसा सलूक करेंगे? आज हमारे अखलाक ऐसे बिगड़े हुए हैं कि अखलाक लोगों को कलीमे तक नहीं पहुंचाते। तीसरा वो शख्स है, चौथा वो शख्स जो दिल में हसद और कीना रखने वाला हो। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खून के प्यासे हैं, करीब में रिश्तेदार रहते हैं, अपने घर के पड़ोस में एक बेवा औरत रहती है या एक यतीम बच्चा रहता है, लेकिन उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफत में बयान किया है, इन्नका लतसिलुर रहीम व तहमिलुल कल, और लोगों के बोझ को उठाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुश्किल वक्त में लोगों के काम आते हैं। ये किस वक्त की सिफातें हैं? जब नबूवत से सरफराज नहीं हुए थे, उस वक्त के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सिफातें हैं। व तहमिलुल कल व तक्सिबुल मादूम, बेसहारों का सहारा बनते हैं। नहीं देखते मेरा रिश्तेदार है या मेरा रिश्तेदार नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने गैरों के साथ भी ऐसे अखलाक पेश किए हैं कि अखलाक को देखकर ईमान से सरफराज हुए। व तक्सिबुल मादूम व तक़री ज़ैफ़, और मेहमानों का इकराम करते हैं। व तुईनु अला नवाइबिल हक़, और हक के रास्ते पर आने की वजह से जो मसाइब है उसके बारे में मदद करते हैं और तसल्ली देते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ऐसी है जो क़यामत तक कभी नेस्त नाबूद होने वाली ज़ात नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफात ऐसी है जिसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाते हैं और उनसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की 4 साहबजादियाँ और 2 साहबजादे, जिनमें से एक का नाम कासिम था और दूसरे का नाम अब्दुल्ला था। बचपन में ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नरीना औलाद का इंतकाल हो जाता है। शायद मुफस्सिरीन ने इसकी मसलियत और हिकमत में लिखा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नरीना औलाद के ज़िंदा न रहने की ये हिकमत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया की औलाद में ही से अंबिया को मबरूस फरमाया है। असल में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी थे और नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई और नबी आने वाला नहीं था, इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नरीना औलाद बाकी नहीं रही। और चूंकि हर उम्मत में गुलू पैदा करने वाले होते हैं, हर उम्मत में ज़्यादती और ताअद्दी करने वाले होते हैं, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस हिकमत के तहत कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अगरचे आखिरी नबी उस ज़मा है लेकिन उनके औलाद में से कोई उनको नबी न मान ले, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलाम की नरीना औलाद को पैदा नहीं किया। और मदनी ज़िंदगी में हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो अल्लाह के नबी की बांदी थी, उनसे भी एक लड़का हुआ जिसका नाम था हज़रत ताहिर। उसका भी इंतकाल हो गया और वो भी बचपनी में अल्लाह को प्यारे हो गए। जिस वक्त ये मंजर देखा कि नबी अलैहिस्सलाम की नरीना औलाद पैदा नहीं होती और अरब ज़बान में वो शख्स जिसकी नरीना औलाद पैदा न हो उसको अबतर कहा जाता है, उसको अरबी ज़बान में अबतर कहा जाता है कि ये तो कटा हुआ दूम है। असल में अरबी ज़बान में अबतर कहते हैं कटे हुई दूम को, कि इसकी नरीना औलाद नहीं होती, मतलब ये है कि वो कटा हुआ है। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मक्की ज़िंदगी में दो साहबजादों का इंतकाल हो गया तो अबू जहल, उतबा, उकबा ये जानी दुश्मन बने हुए थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अबतर कहने लगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को गम पहुंचा। नबी अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में कुफारों की तरफ से गम खाते थे, लेकिन आज का मुसलमान उस नबी के तरीक़ों को भूल चुका है, उस नबी की सीरत को भूल चुका। याद रखिए, हम अगर आज तक जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के गुस्ताखाना कलिमात किए जाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ अपनी नापाक ज़बानों को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो नूपुर शर्मा की शक्ल में हो या नवीद जुंदाल की शक्ल में हो, याद रखिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का नाम क़यामत तक रहने वाला है। वो मक्के ज़िंदगी में जो कुफ़ार मक्का नबी अलैहिस्सलाम को अबतर कहा करते थे, आज वो अबतर हो चुके हैं। जो नबी अलैहिस्सलाम को ये कहते थे कि नरीना औलाद बाकी न रहने की वजह से कुछ ही वक्त में नबी अलैहिस्सलाम भी नेस्त नाबूद हो जाएंगे। करोड़ों मुसलमान एक वक्त में कई कई जगहों पर दुरूद और सलाम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाते। लेकिन दोस्तों, क्या उस दुरूद और सलाम नाजिल फरमाने पर हमारा हिस्सा है या नहीं है? हम नबी अलैहिस्सलाम के तरीकों को अपनाते हैं या नहीं अपनाते? जिस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को गम पहुंचा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जख्म पहुंचा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह कौसर नाजिल फरमाई और फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। ए नबी जी, गम करने की जरूरत नहीं है, ए नबी जी मायूस और नाउमीद होने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो करोड़ आएंगे और दुनिया से चल बसेंगे, उनका नामो निशान दुनिया से मिट जाएगा, लेकिन आपको तो अल्लाह एक खैर कसीर देने वाला है। अल कौसर जो कसरत से माखूज है, उसका मतलब है खैर कसीर। अब खैर कसीर से क्या मुराद है? मुफस्सिरीन ने बहुत सी तफसीरात उसमें की है कि कौसर का एक मतलब तो यह है कि जन्नत में एक नहर है जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि कौसर जो एक नहर है उसमें पानी होगा जो शहद से ज़्यादा मीठा और दूध से ज़्यादा सफ़ेद होगा। उसकी दोनों नहरें जो हैं वो सोने की होगी और उसकी सतह याकूत और मोती से जड़ी हुई होगी। जो जन्नत से नहर निकलेगी, नबी अलैहि और बाज़ मुफस्सिरीन ने जैसे हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा है कि वो एक हौज़ है जहाँ पर उम्मत मोहम्मदिया जन्नत में दाखिल होने से पहले सितारों की तादाद में बर्तन लेकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होंगे और प्यास की भीख और पानी की भीख मांगते होंगे। मेरे दोस्तों, उस वक्त की हालत में भी नबी अलैहिस्सलाम जब अपनी उम्मत को पानी पिलाते होंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको फरिश्ते पानी नहीं पीने देंगे और हौज़े कौसर से हटा देंगे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ए फरिश्तों, उनको पानी पीने दो, वो प्यासे हैं, मेरी उम्मत में से हैं, उन्हें पास पानी पीने दो। मेरे दोस्तों, कसीर तादाद में उस वक्त उम्मत मौजूद होगी, करोड़हा की तादाद में उम्मत मौजूद होगी, लेकिन मेरे नबी की नज़र सब पर होगी।
मेरा नबी अपनी उम्मत से इतना प्यार करता है, हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कल क़यामत के दिन हौज़ कौसर पर होंगे। दूसरी हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पुल सिरात पर होंगे। तीसरी हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिसाब व किताब की जगह पर होंगे। इसकी तत्बीक में उलमा ने लिखा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त दुनिया में थे, अपने उम्मत की हिदायत और रुश्द के लिए जो दर दर की ठोकरें खाते थे और एक उम्मती के पास जा जाकर कहते थे कि ऐ मेरे उम्मती, कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगा। कल क़यामत के दिन मेरा नबी इस उम्मत की कामयाबी के लिए चैन से नहीं बैठेगा, कभी भागता हुआ हौज़ कौसर पर जाएगा, तो कभी भागता हुआ हशर के मैदान में हिसाब व किताब को आसान करवाने के लिए जाएगा, तो कभी पुल सिरात के रास्ते को आसान करवाने के लिए जाएगा। यह है मेरा नबी। लेकिन आज उस नबी के तरीकों को हम छोड़ रहे हैं। याद रखिए, कल वो फरिश्ते जो उन लोगों के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से दरखास्त करेंगे, ए नबी जी आपको मालूम नहीं है, ये वो लोग हैं जो आपके दुनिया से चले जाने के बाद, दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद आपके पीछे उन्होंने आपकी सुन्नतों को ठुकराया था, आपकी सुन्नतों की बेअदबी की थी, आपके तरीकों में ज़्यादती और बिदअत किया था। लिहाजा उस वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी नज़र को फेर लेंगे। मेरे दोस्तों, ऐसा ना हो कि उसमें हमारा भी शुमार हो जाए और हम भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हौज़ कौसर से महरूम हो जाए। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया कि आपको खैर कसीर दिया गया, लिहाजा आप दोनों चीज़ों में मशगूल रहिए, एक नमाज पढ़ते रहिए और दूसरा कुर्बानी करते रहिए। मेरे दोस्तों, आमाल के हिसाब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो हम चीज़ों को बयान किया है, एक नमाज और दूसरा कुर्बानी। कि कुर्बानी और नमाज ऐसी चीज़ है जो इंसान को सब्र में तसल्ली देती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब गम पहुंचा था कुफारों की जानिब से, तभी तो यह आयत नाजिल फरमाई थी और फरमाया था कि नमाज और कुर्बानी करते रहिए। रहा मसला आपका दुश्मन का, इन नशानियका हुवल अब्तर, आपके दुश्मनों का नामो निशान मिट जाएगा। अल्लाह ने क्या फरमाया, ए नबी जी आप गम न कीजिए, आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो पीछे आपको तकलीफ और गम पहुंचाने वाले हैं, उनका नामो निशान दुनिया से मिट जाएगा। आज हम देख रहे हैं कौन अबू लहब का नाम रखता है अपने बेटे का, कौन नाम रखता है अबू जहल का, कौन नाम रखता है उतबा और उकबा का। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम करोड़ों इंसानों को अगर देखेंगे, किसी का नाम अहमद होगा और किसी का नाम मोहम्मद होगा। यह है मेरे नबी की मुख्तसर सी सीरत। मेरे दोस्तों, अगर उसका जायजा ले, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तक़दीस को बयान करना, उसका सुनना और उसका समझना हमारे लिए निहायत ज़रूरी है। और ऐसे वक्त में आज मुसलमानों के खिलाफ जो दुश्मन अपनी साजिशों को, अपनी मुकम्मल तैयारी की हुई साजिशों के तहत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ अपनी ज़बानों को, नापाक ज़बानों को इस्तेमाल करते हैं, उसकी एक कमज़ोरी ये भी है कि हमने अपने अखलाक को नबी के अखलाक के मुताबिक नहीं रखा, जिसकी वजह से इन ऐसे अहमकों की हिम्मतें बढ़ गई हैं। अगर हम अपनी ज़ात को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के सुपुर्द कर देते, अगर अपने अखलाक को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक के मुताबिक कर देते, अपनी सुन्नतों को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और तरीक़ों के मुताबिक कर देते, किसी की हिम्मत नहीं होती कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ अपनी ज़बान दराज करके। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ों के बिल्कुल मुताबिक बनाएं। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जैसी ज़िंदगी गुजरी है, ऐसी ज़िंदगी गुजारने की, और इस तरीके से सिर्फ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ही वार नहीं करते ये लोग, वो मुद्दा जिससे कमज़ोर मुसलमान उसका शिकार बन जाए, उसी चीज़ को लेकर वो अवाम में रखते हैं कि इसके ज़रिए से एक कमज़ोर मुसलमान मुर्तद का शिकार बन जाए। जैसे माशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कम उम्री में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शादी की, तो कम उम्री में ही, इतनी उम्र में एक 50 साल बुढ़ा शख्स किस तरीके से इस कम उम्र लड़की से शादी कर सकता है। कमज़ोर मुसलमान अगर उसके पास इल्म नहीं है, अगर वो लाइल्मी का शिकार है, जैसे इनायतुल्लाह खान, जो डॉक्टर इनायतुल्लाह पाकिस्तान के माहिर डॉक्टर थे, किसके हड्डी जोड़ने के माहिर डॉक्टर थे, जब किसी एक ईसाई लड़की ने उनको बस में ये कहा कि तुम्हारे मजहब में अल्लाह के नबी जो आप लोग मानते हैं वो उनका नाम क्या है, उन्होंने सवाल किया तो जवाब दिया डॉक्टर इनायतुल्लाह ने, उनका नाम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस तरीके से मुख्तलिफ सवालात करने के बाद एक सवाल और किया कि तुम्हारे नबी ने एक कम उम्र लड़की पर ज्यादती की है। क्या कहा? एक कम उम्र लड़की पर ज्यादती की है। डॉक्टर इनायतुल्लाह दुनियावी तालीमात से तो आगाह थे, लेकिन उखरवी और दीनी तालीमात नहीं जानते थे, जिसकी वजह से इर्तिदाद का शिकार बन गए। लेकिन दूसरे मौके पर 11 साल के बाद एक यूनिवर्सिटी कॉलेज में उनका जाना हुआ और कुछ स्टूडेंट ने तफसील के साथ सीरत निगारी की, सीरत और मजमून को पेश किया। उसमें एक तालिब इल्म ऐसा था जिसने 11 बीवियों के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी का मुफस्सल और तफसीली तौर
तौर पर जिक्र किया और तमाम फवाइद को बताए। याद रखिए, एक ईसाई औरत, एक वाकया है कि एक ईसाई औरत ने यूँ कहा कि मुझे इस्लाम के एतबार से, हर एतबार से तशफ़ी है, मुझे सिर्फ एक सवाल खटकता है जिसकी वजह से मैं ईमान नहीं लाती, इस्लाम कबूल नहीं करती। फरमाया क्या? कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत आयशा से इतनी कम उम्र में क्यों शादी की? तो उस आलिम ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया और उस लड़की से कहा, बताइए तुम ईसाई हो? कहा ईसाई हो। कहा तुम्हारी उम्र समझ लो 12 से 13 साल की उम्र है। कहा ठीक है। फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो जाए। कहा जी, कि अगर नुज़ूल होने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम अगर ये कहे कि मुझे आपसे निकाह और शादी करनी है, तो उसने कहा मैं नहीं सोचूंगा आगे पीछे क्या है, बस मैं तैयार हो जाऊंगी शादी के लिए। फरमाया कि जब ईसा अलैहिस्सलाम वक्त के नबी होने की वजह से अगर तू तैयार हो जाती है, तो आयशा जो कि ईसा अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा अफजल और बेहतर है, उस नबी से शादी नहीं कर सकते, उस नबी से शादी के लिए तैयार नहीं हो सकती। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, इल्मी की वजह से एक ऐसा आम मुसलमान उसका शिकार बनता है। हकीकत में अगर सीरत और तारीख का मुताला करे तो यकीनन उसके इस्लाम उसको रोशन और साफ जाहिर नजर आएगा। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम चाहे जितना भी यलगार करें, हमसे जितना हो सके हम उसका दिफा करते रहें और अपनी ज़िंदगी को नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़ों के मुताबिक गुजारते रहें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के मुताबिक गुजारते रहें। तौहीन रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं उसको हम संभालते रहें और उसको अपनी ताकत के मुताबिक करते रहें। इंशाअल्लाह ताला दुनिया का माहौल चाहे ख़राब हो या ना हो, हमारी आखिरत इंशाअल्लाह ज़रूर सुधरेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी अलैहिस्सलाम के जितने गुस्ताख हैं उनको नेस्तो नाबूद फरमाए, नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे आशिक और जाज़ीर बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।